Hello students and welcome again to physics class। तो students जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 4th ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸੋ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ the power to which fundamental units must be raised in order to express physical quantity। ਕਿਸੇ ਵੀ physical quantity ਨੂੰ represent ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ fundamental quantities ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ power raise ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ power ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ dimensions ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ dimension ਜਿਹੜਾ word ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਸੀ ਡਾਇਮੀਟਰੀ। ਸੋ ਡਾਇਮੀਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਮੈਜ਼ਰ ਆਊਟ। ਮੈਜ਼ਰ ਆਊਟ ਮਤਲਬ ਮਿਣਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦਾ ਮਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਜ਼ਰ ਆਊਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਾਇਮੀਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਜ਼ਰ ਆਊਟ। ਸੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਕਿ ਮਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੀਸਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੀਟਰ ਇੰਟੂ ਮੀਟਰ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਲੈਂਥ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਐਲ ਇੰਟੂ ਐਲ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਦੇ। ਲਿਖਣਾ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੋਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਲੈਂਥ ਹੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲ ਸਕੁਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਐਲ ਦੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ 2, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮ ਤੇ ਟੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 0 ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਿਖਣੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ m ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 0, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ m ਦੀ 0। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮਾਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ 2, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਂਥ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2 ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ 0 ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, so dimension of area are 0 in mass, 2 in length ਤੇ 0 in time ਜਿਹੜੀ dimensions ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, that is equal to distance over time ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਟਰ, ਤੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਲ ਆ ਗਈਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀਆਂ
ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋ t ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, l ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋ 1 ਆ ਜਾਊਗੀ ਤੇ t ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ -1। ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਲੈਂਥ ਦੀ 1 ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ -1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 0। ਸੋ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਰ 0 ਇਨ ਮਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਇਨ ਲੈਂਥ एंड -1 इन टाइम। ठीक है, 0 देखो अपने को मास विच आ गई, 1 जिहड़ी है लेंथ विच आ गई ते -1 कदे विच आ गई, टाइम दे विच आ गई डायमेंशनस जिहड़ियां वेलोसिटी दी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लीयर हो गई इन्नी गल, डायमेंशनस दा आपां नूं पता लग गया। ठीक है, की हुंदियां है, सो ये पावर्स ही आ जिहड़ियां अपने को फंडामेंटल क्वांटिटीज दियां हुंदियां आ और जिन्हों आपां फिजिकल क्वांटिटी दी रेज्ड पावर दे विच एक्सप्रैस करते हैं। ठीक है, सो नैक्सट अगे अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इक्वेशंस। पहला आपां पढ़ांगे डायमेंशनल फॉर्मूला की हुंदा। सो डायमेंशनल फॉर्मूला जिहड़ा की है दैट इज द एक्सप्रैशन। ठीक है, एक्सप्रैशन ही हुंदा एक कीदा फॉर द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दे यूनिट वास्ते की हुंदा एक एक्सप्रैशन हुंदा आ इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिन्होंने आप फंडामेंटल क्वांटिटी दे विच रिप्रजेंट करना हुंदा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिजिकल क्वांटिटी दे जिहड़े यूनिट आ, ठीक है, उन्होंने जदों आप फंडामेंटल क्वांटिटीज दे विच रिप्रजेंट करते हैं तो वह की बन जाता अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायमेंशनल फॉर्मूला असीं वेलोसिटी का अगे कैलकुलेट कर चुके हैं। वेखो की आया, ਉਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, m ਦੀ ਪਾਵਰ 0, l ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋ 1 ਆ ਗਈ, t ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -1। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਸੀ 0 ਇਨ ਮਾਸ, 1 ਇਨ ਲੈਂਥ ਤੇ -1 ਇਨ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਾਂ, m ਦੀ ਪਾਵਰ 0, l ਦੀ ਪਾਵਰ 1, t ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਇਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, सो ये अपने को की बन गया डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का। सो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप किस तरह लिखांगे, स्क्वायर ब्रैकेट विच पा के m दी पावर 0, l दी 1, t दी -1। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई दी। अगे नैक्सट अपने को हैगी आ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन की हुंदी है, देखो स्टूडेंट्स इक्वेशन का मतलब की है, सो ये जानना बड़ा जरूरी। जिहदे विच इक्वल टू दा साइन आ जांदा आ, इहदा मतलब वो की बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। उहदे एक सज्जे पासे कोई ना कोई टर्म होगी, कोई ना कोई खब्बे पासे भी कोई ना कोई टर्म होगी। ठीक है, विचकार की होगा, इक्वल दा साइन होगा, उन्होंने आपां की कह दिंदे आ, इक्वेशन कह दिंदे आ। ठीक है, सो इक्वेशन ऑब्टेन्ड व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड with its dimensional formula। कोई भी आपां फिजिकल क्वांटिटी नूं ओहदे डायमेंशनल फार्मूले दे बराबर कर दईए। ठीक है, जिस तरह देखो वेलोसिटी सी, ये अपने को फिजिकल क्वांटिटी आ नाल की आ गया अपने को डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ ते नाल की आ डायमेंशनल फार्मूला। वेलोसिटी जिहड़ी अपने को खब्बे पासे आ गई ते डायमेंशनल फार्मूला सज्जे पासे आ गया, विचकार की आ गया अपने को इक्वल दा साइन आ गया। ठीक है, सो ये की बन गई अपने को डायमेंशनल इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। सो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी जिहड़ी वो ये अपने को बन गई v स्क्वायर ब्रैकेट विच इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट विच फार्मूला अपने को डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी दा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये दैट विल रिप्रेजेंट द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। नैक्सट देखो स्टूडेंट्स, आपां डायमेंशनल इक्वेशन नूं जनरली किस तरह एक्सप्रैस कर सकते हैं भी x स्क्वायर ब्रैकेट विच इज इक्वल टू अगे अपने को फॉर्मूला उस फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, x की रिप्रेजेंट कर दी है अपने को फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है इहदे विच। ठीक है, x जिहड़ी की आ x की रिप्रेजेंट कर रही है, फिजिकल क्वांटिटी नूं रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ते आ अगे जिहड़ी उस फिजिकल क्वांटिटी दे
ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ A, B ਤੇ C ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ। ठीक है स्टूडेंट्स, इथों तक हो गया क्लीयर सारा। तो अगे अपने को सपोज कर लो भी हुण आपां जिहड़ा जिस तरह एरिए दी फिजिकल क्वांटिटी आपां लई सी उहदा आपां डायमेंशनल फार्मूला जिहड़ा कैलकुलेट कीता ही, ठीक है। इसे तरह अपने को वॉल्यूम हैगा, ठीक है। सो वॉल्यूम अपने को कोई फिजिकल क्वांटिटी होए, इधर आपां पा लैंदे आ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये अपने को फिजिकल क्वांटिटी आ गई, आ अपने को जनरल ओदा फार्मूला, ठीक है। फार्मूला की होगा फिजिकल क्वांटिटी दा, अगे ओदा डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। नाल जेड़ा की अपने को ओदे आ जाणगे SI यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट जिहड़ी की है जिस तरह आपां एरिए दी फाइंड आउट कीती, ठीक है, एरिए दी आपां, ठीक है, फाइंड आउट कीता डायमेंशनल फार्मूला। फार्मूला की हुंदा एरिए दा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो वो आपां डायमेंशनल फार्मूला ओदा की लिखिया सी कि लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। ये अपने को की बन गया L स्केयर। तो इनू आपां किस तरह लिखांगे, M0 L दी पावर 2 ते T दी पावर कितनी होगी 0। इनू आपां स्केयर ब्रैकेट विच इस तरह लिख लवांगे और इहदे यूनिट की हुंदे आ मीटर स्केयर, ठीक है। तो कल्ली अपने को L स्केयर है ना, L मतलब लेंथ, लेंथ दे यूनिट की हुंदे मीटर, ते मीटर दा की हो गया स्केयर आ गया, ठीक है। सैकेंड अपने को नैक्सट अपने को आ गई वॉल्यूम। वॉल्यूम की हुंदा, वॉल्यूम जिहड़ा आ उहदा फार्मूला हुंदा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। सो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट जिहड़ियां वो सारियां आपां काहदे विच मेजर करदे आ, मीटरां विच ही, ठीक है। सो तिन्ने दा मतलब लेंथ ही हो गईयां। ते फिर अपने को डायमेंशन फार्मूला की बनूगा M0 L क्यूब T दी पावर 0। सो डायमेंशनस जिहड़ियां की मास दियां आ गईयां 0, लेंथ दी हो गई 3 ते टाइम दियां किन्नियां हो गईयां 0, ठीक है। सो इहदा मतलब SI यूनिट की होणगे मीटर क्यूब, ठीक है। लेंथ दा क्यूब है इस करके इहदे यूनिट की होणगे मीटर क्यूब, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपने को थर्ड डेंसिटी। डेंसिटी की हुंदी है that is the mass per unit volume, mass over volume। so mass दे ते अपने को आ गए M1 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दा आपां कड्ढिया ही L क्यूब। इहदा मतलब अपने को M1 L जदों ऊपर जाऊगी, ठीक है, उहदी पावर जिहड़ी -3 हो जानी आ, ते टाइम इहदे विच है नहीं है, इस करके टाइम दा जिहड़ा डायमेंशनस किन्नियां आउणगियां 0, ठीक है। उतरा ये अपने को SI यूनिट की हुंदे आ किलोग्राम मास दे हो गए पर क्यूबिक मीटर। तो लेंथ है ना, लेंथ दे यूनिट की आ गए मीटर, तो ओदी पावर होगी लेंथ दी -3, तो मीटर दी भी पावर कितनी होगी -3 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। आगे देखो अपने को नेक्स्ट अपने को फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी जिहड़ी की हुंदी आ, ये आपां फार्मूला इहदा किस तरह लिखदे आ, डेंसिटी जिहड़ी आ अपने को मटीरियल दी, डेंसिटी ऑफ मटीरियल डिवाइडेड बाय जिहदी आपां स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करनी आ उस मटीरियल दी डेंसिटी डिवाइडेड बाय अपने को आ जाऊगी डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ते, ठीक है, अपने को डेंसिटी वाटर दी जिहड़ी आ वो कितनी होगी,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर दईए, ठीक है। सो ये अपने को आ जाऊगी स्पैसीफिक ग्रेविटी। देखो स्टूडेंट्स फार्मूले दे विच दोनों डेंसिटीज आ, उपर भी डेंसिटी आ, नीचे भी जिहड़ी की अपने को डेंसिटी है, ठीक है। सो इस करके ये कोई भी अपने को डायमेंशनल फार्मूला नहीं बनूगा, इनू कहते डायमेंशनलैस क्वांटिटी, ठीक है। सो डेंसिटी ओवर डेंसिटी ये ते अपने यूनिट इन्हां दे आपस में कैंसल हो गए, कट्टे गए यूनिट, इस करके इहदी कोई भी डायमेंशन जिहड़ियां नहीं बनगियां, ठीक है। सो आपस में कट्टियां जाणगियां, कोई यूनिट जिहड़े इस स्पैसीफिक ग्रेविटी दे नहीं आउणगे, क्योंकि उहदियां डायमेंशनस भी जिहड़ियां नहीं हैगियां, ठीक है। अगे नैक्सट आओ फिफ्थ अपने को हैगा स्पैसीफिक वॉल्यूम। स्पैसीफिक वॉल्यूम की हुंदा है? स्पैसीफिक वॉल्यूम, स्पैसीफिक वॉल्यूम ये अपने को वॉल्यूम ओवर मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पैसीफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम नु आपां रिप्रेजेंट कर दिंदे आ एल क्यूब नाल, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास हो गया m1, ते ये अपने को कितना आ जाऊगा m दी पावर -1 l दी पावर 3 हो गई है, ठीक है, ऊपर ही आए 3 रहूगी, ठीक है। ते टाइम दी जिहड़ी आ पावर कितनी होगी, 0, टाइम है ही नहीं है इहदे विच, m-1 l दी क्यूब ते t दी पावर 0, ठीक है। सो ये अपने को ऐसा यूनिट की बन गए, देखो अपने को किलोग्राम दी पावर -1 आ, ठीक है, ते लेंथ दे हो गए मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब पर किलोग्राम, ठीक है, समझ लगी, मीटर क्यूब पर किलोग्राम अपने को यूनिट आ गए किदे स्पैसीफिक वॉल्यूम दे। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट अपने को सिक्स्थ जिहड़ी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। सो ये अपने को फॉर्मूला इहदा की हुंदा आ, स्पीड दा डिस्टेंस ओवर टाइम, ये की हुंदा फॉर्मूला, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस दी अपने को की आ जाओगे एल, लेंथ हो गया, डिस्टेंस की हुंदा लेंथ ही हो गया, L1 होगी ते टाइम T1 हो जाऊगी। इहदा मतलब ये मास इहदे विच है नहीं, मास 0 हो गया, L1 ते टाइम दी डिमेंशन आ गई T दी -1। ओके स्टूडेंट्स, और ये SI यूनिट की होणगे, लेंथ दे हो गए मीटर, टाइम दे हो गए सैकेंड, नाल उत्ते पावर -1, मीटर पर सैकेंड ये यूनिट आ जाएंगे SI यूनिट किदे वेलोसिटी दे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगे नेक्स्ट वेखो 7th अपने को एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिहड़ी की हुंदी है अपने को वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी ओवर टाइम, स्पीड या वेलोसिटी दियां आपां की डायमेंशनस जिहड़ियां कड्डियां, की डायमेंशन फार्मूला आया ही m0 l1 t-1 डिवाइडेड बाय टाइम t1। जदों ये टाइम उपरले पासे जाऊगा, मास ते 0 ही रहना आ, l1 ही रहना आ, ते t दी पावर -1 ही, पर थल्लियों जिहड़ा 1 ऊपर जाऊगा वो भी -1 दा हो जाऊगा, -1 ते -1 कितनी हो जानी, -2 हो जानी। सो ये अपने को डायमेंशन फार्मूला की बन गया m0 l1 t दी पावर -2, और ये यूनिट की बन गए SI मीटर पर सैकेंड स्केयर। लेंथ दे अपने को आ गए मीटर, टाइम जिहड़ा की आ वो सैकेंड विच मेजर करदे आ, ते ये अपने को पावर कितनी होगी -2। नेक्स्ट अपने को देखो 8th जिहड़ी अपने को लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जिहड़ा की आ दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी।
मास ते वेलोसिटी दे प्रोडक्ट नूं आपां की कहने आ लीनियर मोमेंटम। मास अपने को आ गया m1 इंटू वेलोसिटी अपने को कितनी होगी L1t-1। सो ये अपने को आ गई डिमेंशंस m दियां 1 L दियां 1 ते t दियां -1। सो ये अपने को डिमेंशन फार्मूला आ गया लीनियर मोमेंटम का। और ये यूनिट की बन गए किलोग्राम मीटर पर सैकेंड। किलोग्राम मास दे आ गए, लेंथ दे मीटर हो गए, टाइम दे की हो गए सैकेंड अपने को यूनिट आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई इस चीज की। सो नैक्सट वेखिए अपने को 9th फिजिकल क्वांटिटी इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला की हुंदा आ मास इंटू एक्सलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, मास इंटू एक्सलरेशन। उस तरह मास का ते अपने को m1 आ गया इंटू एक्सलरेशन का की होगा L1t-2। ठीक है, ऊपर आप कढ़िया ही L1t-2। सो ये अपने को डिमेंशन फॉर्मूला की बन जूगा फोर्स का m1 L1t-2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये अपने को यूनिट की होंगे SI दे विच न्यूटन, कैपिटल N दे नाल आपां इहनूं रिप्रजेंट कर दिंदे आ न्यूटन नूं। ठीक है, उस तरह ये स्पैलिंग की आ गए NEWTON, न्यूटन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, पता लग गया फोर्स का। नैक्सट अपने को जिहड़ा 10th हैडिंग पाओ प्रैशर। प्रैशर की हुंदा, प्रैशर जिहड़ा दैट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रैशर। फोर्स दे देखो स्टूडेंट्स तुसीं यूनिट जिहड़े आ वो आपां कढ लए आ न्यूटन हुंदे आ, डिमेंशन फार्मूला भी उहदा कढ लिया m1 L1t-2 हुंदा आ, डिवाइडेड बाय एरिया दे आपां डिमेंशनस जिहड़ियां कढियां है भी लेंथ दियां 2 हुंदियां आ। ਇਹਦਾ मतलब अपने को डिमेंशन फार्मूला की बन जाऊगा m1 L की डिमेंशन कितनी आऊगी 1 ऊपर आ ते 2 आपां नीचे लिया ऊपर आके -2 हो गया। 1 - 2 कितना हो गया -1। ते टाइम दी डिमेंशनस कितनी आ गई -2 m1 L -1 ते t -2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये की आ गए साडे को प्रैशर दे यूनिट आ गए। ठीक है, प्रैशर देखो किस तरह आपां जिहड़ा कि इहदे SI यूनिट लेने आ, फोर्स दे यूनिट आ गए न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया उहदे आ गए मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपां जिहड़े आ प्रैशर दे यूनिट पास्कल भी लेने आ PA। ये अपने को सिंबल आ गया पास्कल दा PA, अपने को स्पेलिंग आ गए पास्कल दे PASCAL, पास्कल अपने को आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने को वर्क की हुंदा है दैट इज फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क किदे बराबर हुंदा फोर्स इंटू डिस्टेंस दे। सो फोर्स दे आपां डिमेंशन फार्मूला कैलकुलेट किया m1 L1t-2 इंटू नाल डिस्टेंस दा फार्मूला जिहड़ा अपने को डिमेंशन फार्मूला लेंथ हो गया L1, ये अपने को की आ जाऊगा m1 L1 ते 1 2 हो गया ते t दी पावर कितनी हो गई -2। इनू स्केयर ब्रैकेट में लिख लीए। ये अपने को वर्क दियां डिमेंशनस जिहड़ियां वो आ जाणगियां। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यूनिट की हुंदे आ जाउल। ठीक है, जाउल जे दे नाल आपां रिप्रजेंट कर दिंदे आ, जाउल इहदे यूनिट आ जांदे आ वर्क दे। ठीक है स्टूडेंट्स, एनर्जी भी एक होर लिख लो, एक एनर्जी। एनर्जी भी जिहड़ी आ वो अपने को वर्क दे बराबर ही जिहड़ी हुंदी आ। ठीक है, जिन्ना वर्क करदे आ वो उहदे विच स्टोर हो जांदा एज इट्स एनर्जी।
सो इहदियां डायमेंशनस भी सेम हुंदियां जो वर्क दियां डायमेंशनस हुंदियां आ M1 L2 T-2 ठीक है और सेम यूनिट एज दैट ऑफ वर्क ठीक है सो ये अपने को एनर्जी दे यूनिट भी की हुंदे आ जाउल ही यूनिट हुंदे आ ठीक है स्टूडेंट्स सो होर भी काफ़ी अपने को फिजिकल क्वांटिटीज आ आपां नैक्सट जो चैप्टर करते जावांगे त्यों त्यों तुहानूं जिहड़ियां नवीं नवीं फिजिकल क्वांटिटीज का पता लगता जाऊगा ठीक है नेक्स्ट हेडिंग पाओ स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ variables and constants तो स्टूडेंट्स आपां जिहड़ियां फिजिकल क्वांटिटीज दे बारे जिहड़ा स्टडी कीता सो मेन अपने को फिजिकल क्वांटिटीज नूं आपां 4 कैटागरीज दे विच डिवाइड कर सकते हैं सो वो अपने को 1 बाय 1 आपां डिस्कस करांगे फर्स्ट अपने को दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल्स की हुंदे आ तो स्टूडेंट्स जिस तरह सानू ना तो ही पता लगता पाया भी वो फिजिकल क्वांटिटीज जिहड़ियां डायमेंशनस जिहड़ियां वो रखदियां आ पर बट डू नॉट हैव कांस्टेंट वैल्यू डोंट हैव कांस्टेंट वैल्यू ठीक है स्टूडेंट्स सो the physical quantities which possesses dimensions but do not have constant value are called dimensional variables ठीक है सो वो अपने को क्वांटिटीज किहड़ियां हुंदियां dimensional variables उन्होंने आप फिजिकल क्वांटिटीज नूं कहने आ फॉर एग्जाम्पल अपने को एरिया देखो लेंथ ब्रैथ चेंज होने दे नाल एरिया चेंज हुंदा आ इसे तरह वॉल्यूम भी जिहड़ा वो भी चेंज हुंदा आ फिजिकल क्वांटिटी आ वेलोसिटी आ अपने को फिजिकल क्वांटिटी वो भी डिस्टेंस चेंज होने नाल टाइम चेंज होने दे नाल वेलोसिटी जिहड़ी चेंज होंदी आ फोर्स हो गई वो भी अपने को जिहड़ी आ चेंज हुंदी आ ठीक है इहदी कोई वैल्यू फिक्स नहीं रहिंदी सो ये अपने को की हो गई फिजिकल क्वांटिटीज ये डायमेंशनल वेरिएबल्स आ ठीक है सो इन्हां नूं की कहांगे आपां फिजिकल क्वांटिटीज नूं डायमेंशनल वेरिएबल्स नंबर 2 नेक्स्ट अपने को नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स ठीक है दो ही तरह के अपने को जिहड़े वेरिएबल्स हुंदे आ डायमेंशनल वेरिएबल्स ते नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स इसे तरह अगे आपां डिस्कस करांगे डायमेंशनल कांस्टेंट ते नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट सो सेकंड अपने को आ गया नॉन डायमेंशनल वेरिएबल सो इस अपने को फिजिकल क्वांटिटी जिन्हां दियां ना ते डायमेंशनस हुंदियां आ ते ना ही उन्हां दी कांस्टेंट वैल्यूज हुंदी है ठीक है सो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज which has neither dimensions nor have constant value ठीक है ना ही उन्हां जे लिख लो भी neither dimensions nor have constant value वेरिएबल है ना वेरिएबल का मतलब की हुंदा भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं हैगी वेरी करती जान रही है ठीक है बदलती जान रही है इस करके उन्होंने जिहड़ा आपां कहने वेरिएबल्स आ भी वैल्यू कांस्टेंट नहीं हैगी नॉन डायमेंशनल मतलब डायमेंशन उन्हां दियां नहीं हैगियां ना ही उन्हां दियां डायमेंशनस होणगियां ना ही उन्हां दी वैल्यू कांस्टेंट होगी इहो जी फिजिकल क्वांटिटीज नूं आपां की कहने आ नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स ठीक है फॉर एग्जांपल अपने को एंगल फिर अपने को स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि कोई जिहड़ी डायमेंशनस नहीं हुंदियां ठीक है एंगल दियां भी कोई डायमेंशन नहीं हुंदियां
स्पैसीफिक ग्रैविटी जिहड़ी मैं दसी ही तुहानूं वो ये भी अपने को डायमेंशनलैस जिहड़ी क्वांटिटी हुंदी है। सिमिलरली अपने को स्ट्रेन भी हुंदी है, इस तरह जिहड़ा की है एटसैट्रा होर भी जिहड़ियां अपने को फिजिकल क्वांटिटी जिहड़ियां कई अपने को नॉन डायमेंशनल वेरीएबल्स दे विच हुंदियां। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। सो इन्हां दी वैल्यू जिहड़ी कांस्टेंट नहीं रहिंदी, पर इन्हां दियां डायमेंशनस भी जिहड़ियां नहीं हुंदियां। ठीक है, सो थर्ड अपने को नेक्स्ट आ जाओ अपने को डायमेंशनल कांस्टेंट। नेक्स्ट थर्ड हेडिंग पाओ डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब these physical quantities possesses dimensions, ये अपने को dimensions नू possess करदियां आ, रखदियां आ dimensions नू। ठीक है, and have constant value, इन्हां दी वैल्यू जिहड़ी की हुंदी आ constant हुंदी आ, इन्हां दी वैल्यू वेरी नहीं करदी। ठीक है, वैल्यू की हुंदी आ कांस्टेंट हुंदी आ। सो इन्हां दियां डायमेंशनस ते हुंदियां आ, पर वैल्यू की रहिंदी आ कांस्टेंट रहिंदी आ। फॉर एग्जांपल अपने को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ, फॉर एग्जांपल लिख लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ये आपां पढ़ांगे। सो ग्रेविटेशन दे चैप्टर दे विच आपां पढ़ांगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इहदियां अपने को डायमेंशनस हुंदियां आ। ठीक है, पर वैल्यू जिहड़ी आ वो कांस्टेंट हुंदी है। इसे तरह ही प्लैंक्स कांस्टेंट आ, प्लैंक्स कांस्टेंट। सो ये सारे कांस्टेंट हुंदे आ और इन्हां दियां डायमेंशनस जिहड़ियां हुंदियां आ। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ लग गई। नेक्स्ट अगे फोर्थ अपने को दैट इज नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। फोर्थ की आ गया अपने को नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट का की मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग नो डायमेंशंस। डायमेंशंस नहीं होंदियां, नॉन डायमेंशन का यह मतलब हो गया ना भी डायमेंशंस जिहड़ियां नहीं होंदियां उस क्वांटिटीज दियां। ठीक है, बट हैविंग कांस्टेंट वैल्यू, बट हैविंग की होगी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुसीं पाई दी वैल्यू लेंदे जे, पाई जिहड़ा की है किहदे बराबर हुंदा 3.14। अगे कुछ लिखी दा भी मीटर या सेंटीमीटर या कुछ भी कुछ नहीं लिखते, सिर्फ एक वैल्यू आ, कांस्टेंट वैल्यू आ। ठीक है, इसे तरह ही ई दी हुंदी आ। ठीक है, इस तरह जिन्नी अपने को 1 2 3 4 5 ये सारी जिहड़ी अपने को गिनती प्योर नंबर्स जिहड़े हैगे आ वो सारे की आ नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट आ। ठीक है, वो सारे की हो गए नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। सो ये चार जिहड़ियां की आ फिजिकल क्वांटिटीज जिहड़ियां उन्हां चार कैटागरीज दे विच डिवाइड किया गया ही, दो वेरीएबल्स ते दो ही कांस्टेंट। ठीक है, समझ लग गई। दो वेरीएबल केड़े, दो डायमेंशनल वेरीएबल ते नॉन डायमेंशनल वेरीएबल, ते दो ही कांस्टेंट केड़े, डायमेंशनल कांस्टेंट ते नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स,